Namaskar and welcome to Samvad. Today we are discussing the aftermath of Operation Sindoor. Although, as the Prime Minister said that the operation is still continuing, but what we are going to discuss is basically the first phase of Operation Sindoor and what lessons should our armed forces, our civilians, our military-industrial complex should learn from the first phase. And to discuss this, we have with us Lieutenant General Raj Shukla, former GOC, A-Track, and member of Union Public Service Commission. Sir, the Indian border strikes, Balakot, or recently in Operation Sindoor, were exemplary in a tactical manner, I would say. Do you believe that such actions are going to change Pakistan's strategic calculus? I'm asking this because Field Marshal Asim Munir, he is still carrying on with this. Terrorism एक legitimate business है. It is legitimate. So it seems that Pakistan's commitment to asymmetry and deniability, which goes along with it, is getting reinforced. So how do you see this panning across domains? देखिए, लेट्स आस्क आसिम मुनीर साहब से सवाल पूछते हैं कि पहलगाम की जो घटना हुई, जिस प्रकार से वो घटित की गई, जहां 28 या 26+1 मासूम लोगों को जिस बेरहमी से आपने मौत की घाट उतारा, धर्म के आधार पर लोगों को अलग किया, की हत्या की, the way honeymoons turned into funerals, जिस तरह मासूम बच्चों के सामने उनके पिताओं को गोलियों से भून दिया गया। अब किसी भी राष्ट्र के पास कोई और उपाय बचा था क्या? जब आप कहते हैं कि भाई will it be effective or not, that is secondary. आप बताइए कोई राष्ट्र क्या करता? और आप पृष्ठभूमि में जाएं, यही नहीं है 2001 में आपने पार्लियामेंट पे घातक हमला किया, फिर कालू चक पे किया, फिर 26/11 होता है। तो what does any self-respecting nation do? I mean, the point is not, it has no option but to respond. If it has no option but to respond, it responded in the manner that it could. So, मुनीर साहब को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा साहब कि do you leave any options? I mean, this question itself, I cannot think of anything else a country would have done. So we did what we had to do. और जैसा आप कहते हैं that कई मायनों में tactically, operationally, even जो राजनीतिज्ञ और जो सेना की जो लीडरशिप थी उसके बीच में जो समन्वय था, that was pretty good. बहुत अच्छा था। पर अब जो सेलिब्रेशन का टाइम है वो खत्म हो गया है। I was also one of the lead spokesmen which said Operation Sindoor was an overwhelming success. मेरा ये मानना है it is the biggest military victory since 1971. देखिए कब इतने हम पर हमले हुए, कब हमने रावलपिंडी को मारा, कब हमने रायविंड में घुस के मारा, कब हमने मुजफ्फराबाद में मारा। 10 की सुबह कहां थे पाकिस्तान के J-10, J-17, HQ-9? आसिम मुनीर साहब कहां थे? सब गायब थे। So Pakistan was vulnerable, exposed. It had lost control of its air. वो जो वायु परिसर है, उसका नियंत्रण खो बैठा था। It was decimated. I mean, what terms shall I use? The victory was the greatest since 71. 71 में बांग्लादेश का उदय होता है. A new geopolitical reality is created. But by and large, along the Western Front, we were told to hold. It was a holding operation. कारगिल में हमने सिर्फ जो हमारे LC में जो बैठे थे, हमने उनको निकाला. We did not even cross the LC. ये पहली बार है जब हमने पाकिस्तान को, और वो जो टर्म है एकदम सही है कि घर में घुस के मारा. पाकिस्तान लाचार था, इट हैड नो ऑप्शंस. वो हाथ जोड़ के आया कि साहब युद्ध विराम कर लो.
तो I cannot think of a more complete victory. Having said that, मेरा ये मानना है कि सिंदूर को सिर्फ पहलगाम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। देखिए मेरे समझ में, देखिए चीन क्या कर रहा है। चीन अंडरस्टैंड्स दैट दे कैन बी ओनली वन टाइगर ऑन अ हिल। पहाड़ी पे बस एक शेर टिकेगा। भारत बहुत सालों से कह रहा है, साहब कैन देयर बी टू टाइगर्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द स्लोप्स। पहाड़ी की जो दो ढलान है, भाई आप उधर रहिए हम इधर रहें। जो चीन का पावर कैलकुलस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वन टाइगर ऑन अ हिल, वी कैन डिस्कस दिस इन मेनी वेज। और उस सोच के तहत अगर मैं चीन में हूं, एक तरफ तो मैं जो अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ा रहा हूं। किस दर से? $450 बिलियन पर ईयर, पर वर्ष, प्रति वर्ष। अभी समझना बहुत जरूरी है, उनका रक्षा खर्च हमसे $450 बिलियन अधिक है हर साल। हर साल। एक तो ये हकीकत हो गई। फिर वो उसके इस खर्चे से वो वेस्टर्न थिएटर कमांड में क्या करता है, रॉकेट फोर्स में क्या निवेश करता है, एआई फोर्स में क्या निवेश करता है, बायडू सैटेलाइट्स में क्या निवेश करता है, साइबर स्पेस, ईडब्ल्यू। तो एक जो ये जिसे कहते हैं लैग है, ये बढ़त है चीन की, ये तो इसमें विस्तार हो रहा है। दूसरा, उसने एक नए उपाय ढूंढ लिए हैं। उसने कहा यार भारत को अगर अपनी जगह में रखना है तो मैं क्यों उलझूं, पाकिस्तान है तो इनको दे देते हैं J10, J17, HQ9 और ये उलझेंगे। और पाकिस्तान के साथ अभी टर्की भी आ गया। सो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू अलोंग द वेस्टर्न होराइजन, जो हमारे पश्चिमी सीमाएं हैं जी। एक समस्या है पाकिस्तान, टर्की, टेरर, इससे हमको जूझना पड़ता है। और हाल ही में जो भू राजनीति की कुछ गतिविधियां हुई हैं उसके फलस्वरूप दे हैव क्रिएटेड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी इन बांग्लादेश। अभी आप देखिए टर्की के डिफेंस मिनिस्टर वहां थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे वहां। क्या कर रहे हैं वहां पे? गुलाब जामुन खाने तो गए नहीं। देयर आर प्लान्स इन द ऑफिंग। मोहम्मद यूनुस हैज बीन टॉक, सडनली उनको भाई याद आया लैंड लॉकेडनेस ऑफ 7 स्टेट्स। लाल मोरनाट में एयरबेस आता है। 75% इन्वेंट्री बांग्लादेश की चीन से। शेख हसीना वहां जाती हैं, 4 दिन का विजिट है और तीसरे दिन वापस उनको आना पड़ता है। और जैसे ही आती हैं, शी लैंड्स इनटू अ मेस। जमात आ गया है। डीजी आईएसआई पिछले 2-3 महीने में 3 बार गए बांग्लादेश। वो तो यार सोच रहे हैं कि अब अच्छा मौका है भारत से इंतकाम लेने का। These are facts. There is a reality here. There is a reality here. और साथ साथ मैं 400 शिप की नौसेना तैयार कर रहा हूं। चीन, these 400 ships are not going to patrol the coastline. They are going to come into the IOR. आ चुके हैं भारतीय महासागर। तो मैं कह रहा हूं सिंदूर was a wake up call. Perhaps God said, here is सिंदूर, आप जाग जाए। सिंदूर is just the beginning. अगर जितनी मैंने चीजें कही हैं, either you contest them. I am saying these are new national security realities. देखिए भारत की जो सोच है ना, क्या थी, किस तरह से बदल रही है और किस तरह से हमें आगे दे। बहुत समय तक हमारी सोच थी कि साहब देखिए भी जो हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरी है उसको हम शांत करें। सो डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए, किसी से युद्ध ना हो। इंटरनल पेरिफेरी को स्टेबलाइज करें। तो नक्सल के खिलाफ कार्रवाई, नॉर्थ ईस्ट में जो हमने किया, JNK, हैविंग स्टेबलाइज द टू पेरिफेरीज, हमारा उद्देश्य क्या है? हम किसी से नहीं उलझेंगे। नॉन अलाइनमेंट का फेमस फ्रेज था, टू अवॉइड एंटेंगलमेंट्स। और हम करेंगे क्या? हम अपने जो 143 करोड़ भारतवासी हैं, उनकी तरक्की, उनकी भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाए, ये प्लान था। इट इज अ गुड प्लान, वेरी वाइज प्लान, एक्सेप्ट दैट यथार्थ में दिस रियलिटी इज नॉट हैपनिंग। मैं ये कहता हूं इंडिया विल हैव टू प्लॉट इट्स राइज अमिडस्ट मल्टीपल क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्रंटेशंस। आप बनेंगे विकसित भारत, आप सुदृढ़ बनेंगे, पर सुरक्षित भारत बनाना उतना जरूरी है। इट्स नॉट अ गिवन
यू विल हैव टू सिक्योर इंडियाज राइज। ये जो विकसित भारत का सपना है, इसको वी विल हैव टू सिक्योर इट, इसको मजबूत करना पड़ेगा। ये इट्स लॉन्ग टर्म इशू। साथ साथ जो चीन के साथ है, अब बड़ी धारणा है, बहुत सोच समझ के बाद मेरी धारणा क्या बनी है चीन के साथ, दैट फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, अर्थव्यवस्था का नंबर 1 राष्ट्र पीपीपी टर्म्स चीन, नंबर 3 राष्ट्र भारत। दे आर ग्रोइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नजदीक में, नजदीक, बहुत निकट होके तरक्की कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यू टेल मी इन हिस्ट्री व्हेन दिस हैज एवर हैपेंड। Powers have grown in distant geographies, never in close history. The only way their geostrategic trajectories are bound to clash. The only way to keep that clash peaceful is through deterrence. Deterrence क्या है? सैन्य, strategic military, सैन्य शक्ति तकनीकीकरण में निवेश, so that you build capacities and that capacity should be credible. जिस दिन चीन समझ जाएगा कि हमारी क्षमताएं हैं और वो क्षमताएं जो हैं उनको हम इस्तेमाल करने के काबिल हैं, दे विल बी पीस, अदरवाइज दे विल बी नो पीस, मेरा ये मानना है। सो हमें करना क्या है, सिंदूर से सीख लेके, एक तो अभी देखना है कि इमीडिएट हमें क्या रिसोर्सिंग चाहिए, उसकी भी बात करें। और मेरा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, we should not have, भारत में क्या होता है, our responses to national security are episodic. सिंदूर हुआ तो हमने कुछ किया 4-5 महीने, फिर भूल गए। It has to be enduring, क्योंकि जो आपकी चुनौतियां हैं वो 1 महीने की नहीं है, 2 महीने की नहीं है। It is दशक, 2 दशक, 1-2 दशक में इस बात का फैसला होगा कि चीन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, how will they stabilize? Will they stabilize peacefully through deterrence or they will erupt in war? ये मुद्दे हैं, मूल मुद्दे। अब देखिए चलते हैं कि what can happen with पाकिस्तान। अभी मैंने आपको बताया कि इतनी विशाल जीत थी पाकिस्तान के साथ, पर आप देखिए 2 चीज, एक और चीज पे बात करते हैं। मैं लुक एट द न्यू नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ग्लोबली। जो राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा है वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। देखिए इजराइल ने जो किया ईरान पर, सैन्य दृष्टिकोण से बेहद कमाल की कार्रवाई थी। इन द मिलिट्री सेंस इट वाज वेरी डिस्टिंग्विश्ड, बट क्या वो हो सकता बिना अमेरिका के पूर्ण रूप से सहायता के बिना? आप उनकी सैटेलाइट्स ले लें, आप उनका थर्ड सिस्टम ले लें, एडी का, एरो 2, एरो 3, जो पूरा सेंट्रल कमांड का वहां ढांचा है एयर डिफेंस का, मतलब दे आर इन टाइट मिलिट्री एम्ब्रेस। और उसके तत्पश्चात ही इजराइल कर पाया जो उसने किया हमास, हिजबुल्लाह, ईरान के पर खिलाफ। आप देखिए पाकिस्तान को क्या होता है, एक तो उसको J-10, J-17 तो मिलते ही हैं, but what is more important, it gets its 50 Baidu satellites, it gets its cyber, it gets its space, it gets its EW। भारत के साथ समस्या क्या है कि एक तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स खरीदते हैं, चलिए हमारे पास क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, हम खरीद लें, बट ये जो these other clinching capacities, space, cyber, EW, ये हमें कौन देगा? इसमें एक प्रमुख बाधा क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। अगर आप किसी से कुछ नहीं लेंगे तो ये कहां से क्षमताएं आए? लेट्स आंसर दैट। जो हमारी आत्मनिर्भरता इन डिफेंस है उसकी शुरुआत हुई है, उसका आरंभ हुआ है, बट वी आर नोवेयर इन दैट पोजीशन टू हैव LEO सैटेलाइट्स, टू हैव कैपेसिटीज इन स्पेस, साइबर। अभी चर्चाएं हो रही है अखबार में कि हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। बिल्कुल आप खरीदें, बट आप देखिए क्या हुआ था ये 7 से 10 के बीच, ये जो BVR फाइट्स थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट्स, उसमें निर्णायक फैसले ये थे कि भाई स्पेस, साइबर, EW, डिजिटल सुपीरियरिटी किसके पास? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें पाकिस्तान चीन का सामना करना है, we also have to revisit this strategic autonomy, and we have done it in the past। हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे,
लेकिन 62 में क्या हुआ, हमको यूनाइटेड स्टेट से मदद मांगनी पड़ी। 71 में क्या हुआ, व्हाट सिक्योर्ड अस वाज द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी। What will give these technologies to us today? I cannot think of anybody but America. You tell me anybody else. सर So उसी पे सर मैं एक सेकंड just one line, then I जी will come back. जी जी I am saying जी कि बिल्कुल आत्मनिर्भरता इन डिफेंस करना है, उसके कई अच्छे परिणाम भी जी निकल रहे हैं। We will buy platforms, but we need a technology partner in the strategic military domain. And that to me, in the current frame, I can see nobody else but America. Immediately, what will our diplomats say? They will say Russia has been a good friend. I am saying great friend. Great friend. We are grateful. But आज रशिया, रूस खुद ही इतनी समस्याओं में डूबा है, वो ईरान को कुछ न दे पाया। It's got its own problems. So today, in आज के जो यथार्थ है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के जो यथार्थ है, उसके अनुसार तो मेरे को अमेरिका के अलावा कोई दिखता ही नहीं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं यही कह रहा था सर, वो डिप्टी चीफ राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिकी में बोल रहे थे, नॉट एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, जहां उन्होंने रेफर किया कि सप्लाई चेन इश्यूज ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के लिए उत्पन्न हुए थे। और रही बात सर अमेरिका से, एक लॉजिकल सर बात है कि सर अमेरिका एक डेमोक्रेसी होते हुए एक फ्री ट्रेड में हम बिलीव करते हैं, अमेरिका बिलीव करता है, डेमोक्रेसी है सर, हमारे कॉमन एनिमीज तो नहीं कहना चाहिए सर, कॉन्फ्रंटेशन की एक्सपेक्टेशन जहां से है कॉमन है। पर अमेरिका का पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जो एक बर्ताव आया है सर, वो अभी सेनेटर ब्लूमेंथॉल वो बोन क्रशिंग पेनल्टीज की बात कर रहे हैं सर, समहाउ उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सर मैं सिर्फ एक छात्र के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा सर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, मैनेज करना, या तो हम किसी देश के एक क्या कहें सर, कोई देश हमको वेपनाइज कर सकता है, फिर उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टेक्नोलॉजी लेने में वेपनाइज, जैसे कि क्वाड को लेके कई बार चर्चा होती है सर, कि अमेरिका का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था कि हम वेपनाइज कर दें हिंदुस्तान को चीन के विरुद्ध, वो नहीं होने से उनके रुख में बर्ताव आता है सर। तो ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हम जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम किसी के टूल नहीं बन जाते हैं सर, मतलब अगर हम स्वतंत्र नहीं, हम उनसे ही खरीद रहे हैं सर, तो जब चाहेंगे सर, अपाची अब जाके डिलीवर होने की फिर से बात शुरू हुई है, 2 साल पहले डिलीवर होने वाले थे अपाची हेलीकॉप्टर्स, तो कैसे एक भारतीय होने के नाते हम कैसे सर उन पे विश्वास कर सकते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स से वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। नहीं सर, हम cannot be trusted. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, सर जी it's a legitimate question यार, जी तभी तो मजा आएगा। राइट, बिल्कुल मैंने मान लिया। अब बताइए क्या करूं, किससे मिलेगी मेरे को टेक्नोलॉजी? सर यही समस्या है। नहीं समस्या है तो ये समय है खून का घूंट पीने का। swallow your pride and do। जब समस्या सिर्फ ये नहीं है, समस्या इज प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो तो हर बार ट्रांजैक्शन करेंगे जी, that's another problem। So but see, we have some things to offer, we have a very huge market, we have trade, we have other issues, but जी there is no doubt that America has better cards, but at this moment we have to do it। 71 में हमने क्या किया? 71 में जब पाकिस्तान से हमारी जंग शुरू हुई, तो बिफोर दैट डिडंट वी साइन द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी टू सिक्योर अस। 62 में क्या हुआ था? 62 में भाई प्राइम मिनिस्टर नेहरू तो नॉन अलाइनमेंट के सरदार थे। ही एंडेड अप राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट केनेडी, पढ़े उसे आप? जी इट वाज आई मीन पिटिफुल लेटर। तो जो यथार्थ है उसको देखना पड़ेगा, और यथार्थ में व्हाट वी कैन डू, आई एम सेइंग अ कॉन्फिडेंट इंडिया सेज वी हैव नो ऑप्शन, वी विल डू अ डील विद यू, वी विल नेगोशिएट इन द बेस्ट मैनर दैट वी कैन। अगर आप चतुर हैं तो हम भी चतुर हैं, अगर आपके ब्लूमेंथल है हमारे भी लोग हैं यहाँ पे, बट देयर इज नो ऑप्शन करेंटली, आई हैव टू एंगेज विद यू। और देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे फरवरी में, तो जो मैं कह रहा हूं उसी की तो बुनियाद रखी गई थी। व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज एशिया?
industry alliances for autonomy, robotics, drones, compact, accelerated commerce and defense. भारत में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई लोग यथार्थ जानते हैं, प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने ही साइन दोज डील्स, अब फिर चर्चाएं शुरू हो गई है, भाई ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो कहा, तो यार वो कहेगा what options do you have? So I'm saying currently we have to build our own capacities, not saying abandon strategic autonomy permanently, just revisit it temporarily. Strategic autonomy is a wise concept. Strategic autonomy means do not fall in any block. Milk everyone to your interest. Very wise. That is strategic autonomy. But आज के आप यथार्थ देख लें, I don't see anybody but America, and not on values. वो कोई values democracy की बात नहीं कर रहा. Pure transactionalism. Pure transactionalism. I don't see any other option. So also use trust in Asia. आपके startups हैं, आपकी companies हैं. They will do deals with them and we will get technology. ऐसे हो रहा है. So I'm not saying भाई आप एकदम surrender कर जाएं टीका के साथ. But please see practically क्या हो सकता है. I cannot see any other thing. So in that sense, I'm saying कि आप just revisit strategic autonomy, examine it. एक ही है. और तीन देखिए, अभी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं. There is a very strong possibility कि पाकिस्तान को मिलेंगे J-35s. या अगर J-35 ना मिले तो J-20 stealth, which means कि अब उनमें ये शायद क्षमता हो that they can penetrate our air defenses. देखिए, पर ये भी है, ईरान ने साइबर वॉरफेयर के जरिए कई ईरानी रडार्स को न्यूट्रलाइज किया. We have to have our cyber capacities. हमारी साइबर एजेंसी, उसमें क्षमता होनी चाहिए that we can neutralize many Pakistani radars. पाकिस्तान को अभी मिल रहा है HQ-19, पहले था HQ-9. HQ-19 is a system to intercept your BrahMos. BrahMos ने इतना कमाल किया इस बार. HQ-19 may be able to embrace it. KJ-500 AWACS के हैं. अब इसके बरखिलाफ you have to take some immediate steps. I think we need stealth. We need a lot of AD. So stealth enabled offensive air power. पहली चीज. दूसरा जो बिंदु है जिसपे हमें केंद्रित होना है वो है AD टोपोलॉजी. आप देखिए what protected Israel, फिर भी कितने मिसाइल्स निकल गई. उनके पास आयरन डोम था, AI enabled आयरन डोम. उनके पास एक लेजर इकोसिस्टम है ड्रोन्स को गिराने के लिए. उनके पास एरो 2 था, एरो 3 था, 2 थैड बैटरीज आए थे यूएसए के. हमारा इतना बड़ा राष्ट्र है, इतने शहर हैं और इतनी डिप्लॉयमेंट है. वी नीड मैसिव एडी एंड वी नीड अ ड्रोन मिसाइल फोर्स. मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, आप देखें ड्रोन्स क्या कमाल कर रहे हैं. ये तो हमको इमीडिएट चाहिए. और जितनी टेक्नोलॉजी है ये सब स्पेस साइबर वगैरह, इस पे तेजी से काम करना है, बहुत तेजी से काम करना है. तो सिंदूर से ये चुनौतियां हैं. रक्षा खर्च, पिछले महीने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़े यंग इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आप कभी अपने प्रोग्राम पे बुलाएं, आदित्य कुलावेरी. उन्होंने कहा, साहब, he quoted studies from the American Economic Review and he said it is a misnomer, ये झूठ है that defense is not productive. He says अगर आप ₹1 GDP डिफेंस पे खर्च करें तो वो ₹1 आपकी GDP में उससे बढ़ोतरी होती है. सो द फिस्कल मल्टीप्लायर ऑफ डिफेंस इज 2. जब ट्रम्प साहब बात करते हैं गोल्डन डोम की $175 बिलियन, उसी सांस में वो कहते हैं कि इतने जॉब्स मिलेंगे, इतनी इंडस्ट्री आएगी. बस एक हमारे यहाँ ये धारणा है कि डिफेंस इज नॉट प्रोडक्टिव. पहले हम तरक्की कर लें फिर हम रक्षा खर्च करेंगे. उतना समय तो होगा नहीं हमारे पास सर. जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही, उतना समय तो हमारे पास होगा नहीं. गिवन, मैं एक और दावा कर दूं आपके शो पे, मेरा ये मानना है that there is not a country which has as grim a security challenge as India, perhaps as grim as Israel. आप देखिए, मैंने अभी वर्णन किया है क्या हमारी चुनौतियां. तो हमें पूरी सोच बदली करनी पड़ेगी रक्षा खर्च के जरिए.
अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो पॉलिसीज हैं, और बड़ा विवेक है इस पॉलिसीज में, बट आज के समय वी हैव टू रिविजिट। जी और इंडिजनाइजेशन, जो हमारे, जो मैंने 3 आपसे बातें कही, स्टेल्थ, नेवल, डिफेंसिव पावर, सब चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इट हैज टू बी बियॉन्ड द मिलिट्री। देयर इज सर्टेन नेशनल सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में गहरे चिंतन मंथन की आवश्यकता है। दैट इज द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम सिंदूर। दैट इज द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम सिंदूर कि साहब, हमें चेतावनी मिली है कि जी ये जो ये जो क्या कहते हैं, अभी अमृतकाल का जो खेल है, इसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, कहीं बिगड़ ना जाए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर, इसी को आगे लेते हुए चले सर, जिस तरह से काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों मेथोडोलॉजी से ऑपरेशन सिंदूर में दिखे सर, हम प्रत्यक्ष दिखे हमको, क्या ज्योग्राफी धीरे धीरे सर इररिलेवेंट होती चली जा रही है? जो ज्योग्राफी का स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसके लिए पाकिस्तान बहुत शायद अपने जन्म से ही परेशान है लेकर के, स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेकर के, क्या भारतीय जो परिप्रेक्ष्य, जिसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाए सर, इसमें ज्योग्राफी का आज की तारीख में कितना महत्व है? देखिए, जो आपका सवाल है ना, इस पर मैं जरा इसको पलट के आपसे जी एक प्रश्न के रूप में पूछता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि डिप्टी चीफ ने बोला कि भाई पाकिस्तान और चाइना के बीच, आई मीन, वो भी सरप्राइज बाय दैट, डिडंट वी नो इट? 20 साल से पता है। जी तो दिस एनालिसिस ऑफ आवर्स हैज टू टेक, इट इज वेरी ऑब्वियस। पिछले 8 साल से, और मैं बार बार कितने शो पे कह चुका हूं, जो युद्ध का चरित्र है, कैरेक्टर ऑफ वॉर, रूपरेखा, उसमें गहरी फेरबदल हुई है। इट इज मूविंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक्स, जी ड्रोन्स, मिसाइल्स। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, तो भारत का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ था। जी कैंट्स खाली थे, इस बार तो कुछ नहीं हुआ, जी ऐसे लग रहा था बस युद्ध होने वाला है, बट दैट वाज बेस्ड ऑन लैंड जी लैंड प्लान्स, लैंड वॉरफेयर प्लान्स, पिवट कोर, स्ट्राइक कोर। इस बार बड़ी फौजें हिली नहीं अपनी जगह से, बस दूर, क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, जी स्पेस, जी CEW। अभी आप देखिए, इतने दिनों से जीपीएस की बात हो रही है, हर लड़ाई में जीपीएस अवेलेबल ही नहीं हुआ। जीपीएस has been jammed. First thing which has happened that GPS is not available. आपके जितने प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स हैं सब जीपीएस पे। So you have to look at alternatives. You have to look at AI enabled targeting जो हो रहा है यूक्रेन में, क्वांटम enabled targeting. So लड़ाई का जो चरित्र है, जो रूप स्वरूप है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारी सोच उससे आगे होनी पड़ेगी। It was very obvious that सिंदूर would be मतलब लॉन्ग रेंज प्रिसिशन का गेम है, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन का गेम है, इमेजरी का गेम है, स्पेस का। देखिए, इट इज सो इंपॉर्टेंट। आप देखें, इस बार जो हमारा नैरेटिव था, बयानिया, इट वाज वेरी गुड। हमने बोला ये टारगेट मारा, ये है मैक्सार की इमेजरी। बट आप देखिए, 2 थिंग्स व्हाट शुड डू। आपने देखा वो जो यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे रशिया ने, जी स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब की आप कैमरा इमेजरी क्वालिटी देखें, जी उसको कोई शो करने की जरूरत नहीं है, बयानिया की जरूरत ही नहीं है। जी सो हाउ इमेजरी इज कॉम्प्लीमेंटिंग द नैरेटिव, ये है टेक्नोलॉजी के खेल। इजराइल ने इस बार 10 जनरल निकाले, या 30 जनरल, 10 साइंटिस्ट। ये बड़ी गलत फहमी है, ऑल अबाउट एयर पावर। क्या हुआ इजराइल के अटैक में? फर्स्टली देयर वर मैसिव साइबर अटैक्स व्हिच डिसेबल्ड इरानियन रडार्स, नॉट साइबर अटैक्स ऑन वेबसाइट्स कि साहब आपने कोई सरकारी वेबसाइट गिरा दी, आपने किसी शॉपिंग मॉल की कोई वेबसाइट, वो नहीं, दैट इज नॉट साइबर अटैक। साइबर अटैक इज यू टेक आउट द रडार्स। वो हुआ। अजरबैजान के इलाके से ड्रोन हमले किए, कुर्दिस्तान के इलाके से स्पेशल फोर्सेस वर लॉन्च्ड, एंटी टैंक फायरिंग हुई।
The air component was just one part of it. हम कहते हैं एयर पावर, of course air power is important, but not air power in this sense. देखिए एक और धारणा यहाँ हमने शुरू कर दी है, we walk back every time. अभी एक हमने चीज बयानिया शुरू कर दिया है कि since we did well in the air campaign, there is no need for theaterization. But it is precisely the wrong lesson. और ये वो बहाना है स्टेटस को इसका। 1980 में ईरान ने 52 या 53 अमेरिकियों को होस्टेज किया था, आपको याद होगा जी। एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान हुआ था, ईगल क्लॉ। उस स्थिति में जब अमेरिका के पास थिएटर कमांड नहीं थे, सेंटकॉम बना ही नहीं था, एक टास्क फोर्स बनाई गई, उनके पास भी चेयरमैन जॉइंट चीफ था परमानेंट, जैसे हमारे पास परमानेंट सीडीएस है। उस टास्क फोर्स के तहत ईगल क्लॉ का हमला हुआ, पूरी तरह से फेल, बर्बाद। प्रेसिडेंट कार्टर साहब इलेक्शन हार गए। उसके बाद उन्होंने थिएटराइजेशन किया, बैरी गोल्डवाटर, निकोल्स, ये वो। अभी ये जो हमला हुआ है मिडनाइट हैमर, इट इज नॉट आर्मी नेवी एयरफोर्स, इट इज स्ट्रेटकॉम, ट्रांसपोर्टेशन कमांड, सेंटकॉम, थिएटर्स, जॉइंट थिएटर्स हैव एनेबल्ड दिस। हमारे यहाँ की डिबेट शुरू हो गई कि भाई साहब क्योंकि हवाई हमला हुआ था, थिएटर्स की जरूरत ही नहीं। तो आर बिगर प्रॉब्लम इज आर आइडिएशन। अगर हमारी सोच ही इतनी पिछड़ी होगी तो हम क्या आगे देखेंगे। कभी कभी तो मेरे को बड़ा दुख होता है, ड्रॉइंग प्रिसाइसली द रॉन्ग लेसन्स। और जैसे सिविलियंस लाइक यू डोंट होल्ड द मिलिट्री टू अकाउंट, यू हैव टू होल्ड द मिलिट्री टू अकाउंट ऑन दीज डिबेट्स। गहरी चर्चाएं होनी चाहिए थिएटराइजेशन पे, टेक्नोलॉजीज पे, ये। सो दीज आर टुडे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जटिल कोई मसला है ही नहीं। देखिए कितने कॉम्प्लिकेशंस। तो बस मैं यही आपके सामने पेशकश कर सकता हूँ। सर एक अंतिम प्रश्न, समय की बाध्यता को देखते हुए, सर जो ब्रह्मोस लॉन्च हुआ तो राना सनाउल्लाह जो प्रधानमंत्री के, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार, उन्होंने कहा कि उनके पास 30 से 45 सेकंड थे ये रिएक्ट करने में, ये जज करने के लिए कि न्यूक्लियर अटैक तो नहीं है थ्रू ब्रह्मोस। तो सर इससे आपकी जो ऊडा लूप होती है सर मिलिट्री में, जिसकी खास एक कीमत होती है सर, वो तो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट होती चली गई सर। 45 सेकंड के अंदर में डिटेक्ट करना और उसको काउंटर करना। अब हमारे 4 शत्रु हैं सर, आपने मतलब 4 हमारे बॉर्डर्स पे 4 एक कोलिशन खड़ा हो रहा है, मैं तो उसे एक्सेस ऑफ इविल अब कहता हूं, उस हिसाब से वो तैयार हो रहे हैं। अर्बन सेंटर्स हमारे ज्यादातर अर्बन सर्विस, इस बार कोई अर्बन सेंटर टारगेट नहीं किया गया मेजर। अगर अर्बन सेंटर टारगेट होते हैं सर तो हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए हमारी एज सिविलियंस, आपकी एज सर, आप तो यूपीएससी में हैं, आपकी मिलिट्री की, चारों ओर से कैसी प्रिपरेशन चाहिए और हम कहाँ लैक कर रहे हैं इस समय। देखिए मैंने आपसे कहा ना, एडी टोपोलॉजी, वी नीड टू सिक्योर आवर सिटीज, आवर टाउन्स विद इन्वेस्टमेंट्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स। आप इसराइल का देखें, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, दे आर मल्टी लेयर्ड, they are designed to intercept at certain heights. तो आयरन डोम is close defense, उसके पहले एरो 2, एरो 3, उससे पहले थर्ड high altitude defense. We have to invest in AD greatly. वायु सुरक्षा के जो हमारे तंत्र हैं उसमें बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है ना, ये राणा सनाउल्लाह की, भाई भारत की तो इतनी समस्याएं हुई, हमारे साथ चीन की इतनी समस्याएं हैं, have we ever waved the nuclear rattle? तो भाई हम जिम्मेवार राष्ट्र हैं, हम तो बात ही नहीं करते हैं। एक आप ही के जनरल हैं जो रोज वेव करते रहते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, बेवकूफ की तरह। सो न्यूक्लियर विल नॉट हैपन लाइक दिस। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। हमारा ये कहना है कि ऑल आर न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स। Anybody can make out a difference between a ballistic and cruise missile. So Rana Sanaullah should do some education. But मसला क्या है इस बार? देखिए इजराइल को 2006 से पता था, 2006 से, कि हर रात नसरुल्लाह कहां सो रहा है। दिस इज इंटेलिजेंस, स्पेस, एलियो, मोसाद, 8200, 9300, आपके शो में कई बार बात कर चुके हैं। जिस दिन हमारे पास ये क्षमता आ जाएगी कि मसूद असर कहां सो रहा है, DGISI कहां सो रहे हैं, ये सब समस्या बंद हो जाएगी। इस बार हमने मारा मसूद अजहर के 4 बहनोइयों को, अगली बार मानना है मसूद असर।
जैसे यूएस ने सुलेमानी को निकाला। सो दैट इज डेटरेंस। दैट डेटरेंस विल कम व्हेन यू हैव स्पेस, एलईओ, ये सब चीजें। तो जो हमारी मिसाइल की क्षमता है, फर्स्टली वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम कभी परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हम जी तो जिक्र भी नहीं करते हैं, जी जिक्र भी नहीं करते, वी आर नॉट मैड। बट अगर आपने ये हमले हमले किए टेररिस्ट वाले के, आप सोच लीजिए, सो वी हैव ऑल द राइट टू फायर द ब्रह्मोस मिसाइल। सर हम नहीं करते, पर हमारी तैयारी तो होनी चाहिए कि अगर हम पे हो तो हम अपनी सुरक्षा कर सकें। मैं आपसे कहता रहा हूं बार बार, तीन चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज गौर करें। स्टेल्थ इनेबल्ड डिफेंसिव एयर पावर, स्टेल्थ के साथ ड्रोन मिसाइल फोर्स, नॉट आइदर और, बोथ, जी बोथ, और एडी टोपोलॉजी। जो आप कह रहे हैं उसको दो शब्दों में, इज एडी टोपोलॉजी। जैसे यूएस जो है गोल्डन डोम की तैयारी कर रहा है, $175 बिलियन। जी जी हमारे पास उतने पैसे तो है नहीं, बट कम से कम $25 बिलियन। एडी का क्या मतलब है? ये अलग अलग टाइप के रडार्स, इंटरसेप्टर्स। अभी देखिए इसराइल और ईरान में क्या प्रॉब्लम थी। इसराइल को पता था कि जो उसके एरो इंटरसेप्टर्स हैं वो उसके पास ज्यादा नहीं है, जी और उनको इंटेलिजेंस मिली कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है 3,000 से 8,000 तक। जी बहुत जरूरी था कि जल्दी से जल्दी वो मिसाइल्स निकालें, उन्होंने लॉन्चर्स निकाले। तो ये तो एक कैट एंड माउस गेम है, ये लगातार जी खेलना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। तो देखिए, सोच, ये समय है राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत गहरे बदलाव। सोच, एक्शन, एंड थ्री थिंग्स हैव टू हैपन। अलग अलग नहीं हो सकते। आइडिएशन, द थॉट, इमीडिएट एक्शन, एंड द नरेटिव। जी बयानिया, आइडिएशन, एक्शन, नरेशन, तीनों को साथ में होना है। ये नहीं कि हम भाई आइडियाज, हमारे अगर आइडियाज ही आपके अच्छे नहीं होंगे, आपके एक्शन जी खराब होंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ, और जो आपके छात्र हैं आपके नीचे, अगर जो राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखते हैं, इससे इससे बेहतर विषय क्या हो सकता है? उस जी पर सर। पढ़ें, रिसर्च करें, अध्ययन करें, लिखें, बोलें, तभी तो भारत महान बने। यू हैव टू आइडिएट द आइडिया, यू हैव टू आर्टिकुलेट इट 1,000 टाइम्स, तभी तो लोग उसको सर समझेंगे। चर्चा को तो विराम देना पड़ेगा सर, समय अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और आपसे हर बार हर चर्चा में कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर।